कॉलेज दुनिया में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड ओवर, जिसका नाम है यूके की एग्जिटर यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे। और ये जो यूनिवर्सिटी है एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज ऑफर करती है, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज ये हमें देंगे एक ऐसे स्टूडेंट जो आप ही की तरह पहले एस्पायरिंग टू स्टडी अब्रॉड कर रहे थे बट आज एक्चुअली स्टडी अब्रॉड कर रहे हैं। वी हैव विद अस अब्बास लोखंडवाला। अब्बास इस यूनिवर्सिटी से एमएससी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कोर्स है, क्या इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये सारी बातें हम अब्बास से करेंगे। बट अब्बास, फर्स्टली थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वेलकम ऑन कॉलेज दुनिया। Thank you very much for having me. It's my pleasure. Okay, so I'm going to ask you a lot of questions related to, the entire process that obviously you went through when you were applying, etc. But firstly, let's know more about you, Abbas. Kahan se ho? What's your background? Right. So I'm from Gujarat, a city called Surat. Okay, so Abbas, game show. Fine show, ekdam maja aaya. Right now, I am sitting in your hometown. Is it? Oh, wow. Yes. I'm in Surat right now. Surat, yeah. That's where I'm from. So I did my graduation there. I did my schooling there, of course. And I also have some years of work experience before I decided to move abroad and pursue my post-graduation degree. Mm-hmm. I also did some certification programs which are relevant to my program and also kind of help me seek admission and successfully, clear all the modules of my program. यहाँ आने से पहले of course काफ़ी सारी research किया था मैंने, 1 साल का preparation था and my family का भी काफ़ी support था, तो of course सारी चीज़ qualifications, experience, family का support, everything helped me and फिर मैंने यहाँ पे आके masters किया. So Abbas, already you said you had some work experience also. So what made you pursue your MSc further into this branch? That's one question. And then what is the kind of research that you did into choosing Exeter University? Right. So answering your first part of the question, even after having some years of work experience, I wanted to upscale myself. Having a master's degree from one of the prestigious university is something all students, like me, aspire for. Yeah. So, and I felt, having an international exposure particularly makes you a lot more independent. I could have done an international degree from India, and India has some of the best universities, no doubt about it. But मुझे एक international exposure चाहिए था. I wanted to try myself, and एक out of comfort zone में जाके मैं अपने आप को कितना gel in कर पाता हूँ, क्या मेरे skills में develop कर सकता हूँ, and I wanted to see कि दूसरे side of the world क्या कर रही है. And all of this process makes you a lot more independent and confident in your life. और तो मुझे हमेशा से था कि मैं बाहर जाके कोई डिग्री स्टडी करूँ ताकि आई बिकम सोल्यूशन ओरिएंटेड. चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स किसी को भी कोई भी सिचुएशन में होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो ये सारी चीज़ को कैसे टैकल करके हम लोग आगे बढ़ते ना, लॉन्ग टर्म लाइफ में ये काफ़ी हमको मदद करती है. Correct. Second part of the question was what made me choose University of Exeter. Now, of course, there are a couple of things जो मैंने research की थी, and initial challenge यही था कि UK में इतनी सारी universities top ranked है, तो मैं कौन सी universities select करूँ. तो मुझे एक process चाहिए था, मुझे एक structure चाहिए था. So I filtered down my list on basis of some criteria. कौन सी universities top ranked है. अगर सिर्फ टॉप रैंकिंग मेरा एक क्राइटेरिया है तो उसमें मुझे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज मिल रही थी. दूसरी मेरा एक फिल्टर था कि कौन से मॉड्यूल्स मुझे स्टडी करने हैं. रैंकिंग काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी हो सकती है, पर क्या वो मॉड्यूल्स ऑफर कर रहे हैं जो मुझे स्टडी करने हैं, और अगर वो मॉड्यूल्स ऑफर कर रहे हैं तो क्या वो मॉड्यूल्स मुझे लॉन्ग टर्म जो मेरा करियर और गोल्स है क्या उससे अलाइन है कि नहीं. सो आई हैव टू एनालाइज दीज टू थिंग्स. थर्ड, मैंने एक फिल्टर ये भी कहा था कि जो मैंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस इंडिया में किए हैं वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है उन लोग का एसोसिएशन मेरे यूनिवर्सिटी से है कि नहीं. बिकॉज अगर मेरी यूनिवर्सिटी से अगर एसोसिएशन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने CFA किया है, काफ़ी लोग इंडिया में जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की डिग्री कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट
अकाउंटेंसी की डिग्री या फिर ACCA की डिग्री या फिर CFA की डिग्री या फिर CISI की डिग्री या फिर CMA की डिग्री, तो ये जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है उन लोग का एसोसिएशन काफी सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ है। तो ये एसोसिएशन होना या मेंबरशिप या फिर कोई भी एक्सटेंट तक अगर कुछ कोरिलेशन है, तो आई थिंक वो मेरा एक दूसरा फिल्टर था। एंड ऑफ कोर्स ऑब्वियसली बजटिंग की रिक्वायरमेंट्स जैसे होती है, क्या इंटरनेशनल फीस की है, एंड टीचिंग क्वालिटी कैसी है, एंड एलुमनाई स्ट्रेंथ कितना है उन लोग का, प्लेसमेंट रेशियो कितना है, ये सारी चीज मैं फिल्टर करने के एक्सेटर चूज है। Wow. So I think, and I would like to tell you also, Abbas, that in our platform College Dunia, when we talk about the top leading universities around the globe, these are exactly the kind of things that we also give information on. I think because that's the top criteria or priority that should be for any student. So what would you advise, because you have done a thorough research, so you knew exactly what is it that is going to take you up in your professional career, what is the course you want to do, and you did a thorough research. So what is the advice that you, Abbas, would want to give to the students who are pursuing or wanting to study abroad? What are the things they should not miss out on? Right. I think this is a very interesting question that you mentioned, because a couple of students, what I have seen is they tend to choose the university where their friends are going. So that correct. Might not always be the case. Because चलो भाई मेरा दोस्त वहाँ पे जा रहा है, चलो मैं वो अच्छी कॉलेज होगी, उसने वो रिसर्च किया है और साथ में रहने को मिल जाएगा, कोई अपना एक belongingness होगी फैमिली के साथ, which is fine, you can do that, but after having done your research whether that university is good for you or not. Universities might be the best, पर क्या वो courses offer कर रहे हैं जो आपको स्टडी करने हैं कि नहीं? Cause मैंने काफी टाइम देखा कि जो यूनिवर्सिटी में लग जाता है वो यूनिवर्सिटी वो लोग चूज कर लेते हैं. So it's something university has chosen them, not the other way around, where correct. It should have been you should be the one to pick the university, cause university will have thousands of seats for you, but does that seat matter to you in your long term? So my advice would be to see the modules first that they are offering, और अगर वो modules का alignment आपके career and goals के साथ है, then I think you can go ahead. Second thing is whenever you're analyzing की ranking कितनी है, वो international ranking, national ranking कितनी है, make sure you also see one more factor कि आपकी वो particular school की ranking क्या है. So for example, मेरी University of Exeter है, पर मैंने सिर्फ University of Exeter की ranking check नहीं की. मेरा जो प्रोग्राम का जो स्कूल है, जैसे स्कूल ऑफ बिजनेस, सो यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर बिजनेस स्कूल, मैंने वो पर्टिकुलर स्कूल की मैंने रैंकिंग चेक की इंटरनेशनल लेवल पे. तो वो स्कूल की रैंकिंग आपके लिए मैटर करती है. यूनिवर्सिटी में काफी सारे स्ट्रीम्स होंगे, काफी सारे डिसिप्लिन होंगे, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, आर्कियोलॉजी, बिजनेस स्कूल. तो एग्रीगेट लेवल पे उसकी रैंकिंग एक होगी, पर आपकी बिजनेस स्कूल की रैंकिंग या फिर स्पेसिफिक स्ट्रीम की रैंकिंग अलग होगी. सो आई थिंक दैट इज मोर रेलेवेंट एंड ग्रैन्युलर वे टू इवैल्यूएट की एक्चुअली रैंकिंग कितना आपको मैटर करेगी. Third is when you analyze the alumni strength of your university, also see कि वो alumni strength का placements कहाँ हुआ है. उन लोग का अगर placements आपके target and desired roles में हुआ है, so I think then I think you can get in touch with them and see कि क्या universities जो career and goals आपको professions में आगे लेके जा रही है, और अगर alumni की वहाँ पे placements हुई है कि नहीं, target companies में placements हुई है कि नहीं, और उसका ratio कितना है. So that was one more thing that I had seen, and one more thing that I had analyzed is कि प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो यूनिवर्सिटी बताती है कि हमारा 95% प्लेसमेंट रेशियो, 90% प्लेसमेंट रेशियो है. व्हाट मैटर्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि उसमें से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने थे. I think that is so that is a granular and a specific metric that matters to you. काफी सारे लोग नेशनल सिटीजन्स होंगे, तो उन लोग का भी प्लेसमेंट होता होगा, पर उन लोग का प्लेसमेंट आपके लिए मैटर नहीं करता, बिकॉज उन लोग के लिए क्राइटेरिया अलग थी प्लेस जॉब्स लेने के लिए, आपके लिए क्राइटेरिया अलग है. प्रॉब्ली स्पॉन्सरशिप्स आपको रिक्वायरमेंट होगी या फिर वीजा का कोई रेस्ट्रिक्शंस होगा. तो आपको इंटरनेशनल प्लेसमेंट रेशियो कितना है ना, वो आपके लिए मैटर करता है. और जनरली यूनिवर्सिटीज ये मेट्रिक नहीं देती, बिकॉज इसमें काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, बायसेस आ जाते हैं, एंड कभी कभार डेटा भी नहीं होता. तो माई एडवाइस वुड बी टू सी द things that matter to you and not just skim the university's websites as they have shown you. Correct. And this is such important piece of information, Abbas, that you have shared, which I think any student who is aspiring to study abroad should really consider, because after all, it is a matter of your future, and also you're spending a huge amount of money because expenses bhi hain. So let's come to that part now.
Again, I'm going to divide this into two parts. One is the admission process. How tedious is it? How much time did it take? And what are the important documents? Then I'll come to the second part. Sure. Admission process was entirely online because when I had applied to it, unusual times थे, COVID का times था, and even otherwise online application होती है, you just have to make an account on the university's portal and then fill up the information and upload the documents. But before that, make sure that you have reviewed what are the requirement of the documents that you will have to upload. In case आपको कोई रेफरेंसेस चाहिए या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए कॉलेज से अंडरग्रेड में, या फिर अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो प्रोफेशनल रिकमेंडेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको देखना पड़ेगा. ओवरऑल टाइम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 6 months पहले, और जब एप्लीकेशन के टाइम जब ड्यू डेट के करीब आया, फर्स्ट ड्यू डेट के करीब आया, तब आई हैड ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल. एग्जामिनेशन दे दिए थे, सो आई थिंक इट विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू नो कि कौन सी एग्जामिनेशन देनी है. प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस, इंग्लिश लेवल एग्जामिनेशंस और एनीथिंग एल्स, जीआरई, जीमैट, अगर स्पेसिफिक प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट हो तो. तो एग्जामिनेशंस यू शुड गेट इट आउट ऑफ द वे. रिकमेंडेशंस, लेटर्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, दैट इज समथिंग यू कैन गेट इट आउट ऑफ द वे. एंड यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट्स एंड स्कोर्स, and ये सारे documents generally requirement होती है. Once you have these, I think you'll be good to go ahead. Correct. And all this information is also there in the university website, right? Yes, it is also there on the university website. But I think the way the application works might be different for any other universities. Recommendations की India में for example, recommendations की system कैसे होती है कि we just get a letter printed from the university or colleges and then we submit it. Most of the times, UK में I think it works a bit differently, where they ask you for the email address of the person you are getting the recommendation from. Okay. So आपको letter, signed letter नहीं देना है. You need to give them email address or phone number and inform them कि my university will get in touch with you. So you will have to keep an eye out on your emails so that it does not jump into your junk folder or spam folder. So they will have to respond to that. If they don't respond to you or to that email, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस डिले हो जाएगा. डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या सिस्टम है. तो यू शुड एंश्योर कि आपके पास जो जिनका आपने रिकमेंडेशन लिया है उसका ईमेल एड्रेस और फोन नंबर भी ले लो. Okay. Also, Abbas, postgrad, undergrad में intakes का भी difference है ना? So in your, let's say, postgrad की बात करें तो how many intakes are there and which one is the best? For post-graduation, there were 2 intakes, and one is September and one is January intake. Okay. September intakes में mostly majority of the students target करते हैं, cause after university वो hiring का process start हो जाता है. Jan intake जो मेरा intake था वो थोड़ा unusual था. मुझे actually September का ही intake आ गया था, पर I had to defer it to January start because of restrictions, travel restrictions and lockdowns, etc. तो जनवरी का एक इंटेक है एंड सितंबर का इंटेक है फॉर माय प्रोग्राम. अंडरग्रेड में भी सिमिलर होती है, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स सितंबर इंटेक ही होता है. ओके. सो सी मोर और लेस आई थिंक एडमिशन प्रोसेस और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स कोर्स स्पेसिफिक कुछ होते हैं व्हिच इंफॉर्मेशन वुड बी देयर in the website also. One is this, of course, the intake information is there. Now you've reached the university, you've reached the campus. और अब मुझे बताओ वो एक्सपीरियंस कैसा है, स्पेशली इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो इज इट गोइंग टू बी अ कल्चरल शॉक? यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है? हाउ ह्यूज इज द कैंपस एंड ऑल? Campus was pretty huge, but मेरा experience थोड़ा अलग था, cause I directly had to go home because of the time that I came. Isolation का rule था, 10-day isolation का rule था UK में. So immediately after buying some groceries off from the supermarket, I had to go home. I had no other option. तो मैं university तो नहीं जा पाया था, cause मुझे पहले test conduct करना था, 10 days का isolation period था. तो मेरा experience वहाँ पे थोड़ा अलग है, but generally what students can expect is welcome events lined up होते हैं, जहाँ पे university will demonstrate what kind of experience will have. Societies will campaign, cause काफी सारे clubs and societies होती है, so they will campaign to join their societies, whatever your interests are, sports हो, dancing हो, music हो, या फिर कोई culture specific आपको join करना हो society, तो वो भी आप कर सकते हो.
कैंपस इज ह्यूज. आप आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने वर्चुअल टूर कर लिया हो, जनरली यूनिवर्सिटीज का वर्चुअल टूर 360 डिग्री टूर का लिंक्स देते हैं यूनिवर्सिटी, सो यू हैव एन आइडिया. स्पेसिफिक टू एग्जिटर व्हाट दे डू इज दे टाई यू अप विद अ पेयर बडी या फिर चम्स मेंटर होते हैं who helps you settle in your life. So they reach out to you before you come here or within a few days after you come here to make sure that you're all settled in and you're comfortable in your new life. So they are usually in second year or third year of their undergrad program, or who is someone who could be an alumni of a program. So they would make sure that कि कौन सी चीज कहाँ से बाय करनी चाहिए, रूट्स आपको बता देते कि अगर आपको यहाँ पे जाना चाहिए, it will take 5 minutes 10 minutes. So they pair you up with someone who already has lived here for 1 or 2 years, और वो जनरली स्टूडेंट्स ही होते हैं. Correct. तो पर और 1 साल के बाद you get the opportunity to become a mentor, chance mentor, या फिर a buddy up scheme जैसे है. But I like this thing because जो transition है ना, वो I think smooth हो जाता है with a buddy who is helping you out with little things. But also I want to know, Abbas, how is like accommodation का जो है on campus है, off campus है, and also उसका खर्चा, जैसे एक तो आपकी tuition fees है, so I now also want to know about the tuition fee का खर्चा and also this रहना and miscellaneous expenses. Right. तो accommodation in the UK generally आप पहले से ही डिसाइडेड करके आओ कि मुझे कहाँ पे रहना है, वो रेकमेंडेड है. यहाँ पे आके देख सकते हो, पर प्रोसेस इतना चेंज नहीं होगा, आपको ऑनलाइन ही देखना होगा. तो अगर ऑनलाइन ही देखना है अकोमोडेशंस, जो जनरली वे है यहाँ पे घर देखने के लिए, तो इंडिया से करो या फिर यहाँ के करो, इट्स गोना बी द सेम. तो इसमें कोई आपको एडेड एडवांटेज नहीं है कि अगर आप यूके में आके चलो घर देखो तो आपको आइडिया है कि क्या है. कपल ऑफ वेबसाइट्स जो यूके स्पेसिफिक है, जैसे स्पेयर रूम पे आप देख सकते हो कि कोई फ्लैट अवेलेबल है कि नहीं. राइट मूव पे देख सकते हो कि कोई रूम्स, फ्लैट्स, स्टूडियोज, ऑन स्वीट्स अवेलेबल है कि नहीं. और अगर आपको कोई प्रेफरेंस वाला मिल जाए तो आप देख सकते हो. यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस देती है पर वो थोड़ा प्राइसी होता है. आई विल कम ऑन टू दी ब्रेक डाउन ऑफ एक्सपेंसेस लेटर, पर मैं आपको सिर्फ पहले सोर्सेज बता देता हूँ कि कहाँ आप देख सकते हो. यूनिवर्सिटी आपको देती है अकोमोडेशंस, पर वो थोड़ा प्राइसी है एज आई मेंशन, पर वो कन्वीनियंस के ऊपर है. अगर कोई फीमेल स्टूडेंट्स है, उन लोग को प्राइवेसी एंड सेफ्टी का अगर कंसर्न है, तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस कैन बी द बेस्ट थिंग, बिकॉज रात में पेट्रोलिंग होती है एंड दे मेक श्योर कि द एनवायरनमेंट अराउंड यू इज सेफ, नॉइजी नहीं है. सो अगर स्टडी के लिए कंफर्टेबल चाहिए तो वो भी ले सकते हो. पर यूनिवर्सिटी ओनली 1 ईयर के लिए अकोमोडेशन देती है. उसके बाद यू हैव टू लुक फॉर योरसेल्फ. डजंट मैटर आप 3 ईयर के प्रोग्राम में हो, 2 ईयर्स के प्रोग्राम में हो या 1 ईयर के प्रोग्राम हो, यूनिवर्सिटी आपको 1 ईयर के लिए देगी अकोमोडेशन जनरली. नाउ कमिंग ऑन टू द एक्सपेंसेस, डिपेंड्स कि आप कौन से टाइप ऑफ घर ले रहे हो. तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज होती है, प्राइवेट बेडरूम, ऑन स्वीट या स्टूडियो. प्राइवेट बेडरूम में इट्स जस्ट द बेडरूम. ऑन स्वीट में इट्स योर बेडरूम प्लस प्राइवेट बाथरूम. स्टूडियोज में इट्स योर बेडरूम, प्राइवेट बाथरूम एंड प्राइवेट किचन. ओके. तो नेचुरली तो अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली उसके एक्सपेंसेस होंगे. अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है, अगर वो अकेले रहे तो आई वुड रेकमेंड देम टू गो फॉर द स्टूडियोज, ताकि प्राइवेसी मिल जाती है. पर अगर आपके कोई साथ में फ्रेंड्स भी रह रहे हो तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्प्लिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो आपका खर्चा कम हो जाए. तभी खर्चे पे आते हैं. रीजन टू रीजन डिपेंड करता है. अगर आप लंदन में रह रहे हो या फिर डाउन साउथ रह रहे हो या फिर नॉर्थ में रह रहे हो, मैटर करता है. लंदन एंड साउथ थोड़ा एक्सपेंसिव है, नॉर्थ थोड़ा चीपर है. एक्सपेंसेस में मैं एक रफ एस्टिमेट जो रफ एस्टिमेट एक रेंज देता है, जो ऑन स्वीट जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट बाथरूम के साथ. तो उसका पर वीक का रेंज है विथ बिल्स इंक्लूडेड 120 अ वीक टू 170 या 180 पर वीक. पर वीक है यहाँ पे, जनरली पर वीक होता है. तो ओवरऑल अ मंथ यू कैन एक्सपेक्ट रफली 500 to 800 pounds अ मंथ. ओके. ऑन स्वीट का 120 का रेंज में क्यों ले रहा हूँ, कॉज कोई एरियाज में, कोई रीजन्स में इतना सस्ता होता है. पर अगर यूनिवर्सिटी का ऑन स्वीट है तो वो 170-180 पर वीक हो सकता है, 180 pounds पर वीक. एंड अकॉर्डिंगली आप मंथली का कैलकुलेट कर सकते हो. पर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन विद बिल्स होता है. प्राइवेट में आपके पास ऑप्शन है विद बिल्स लेना है या विदाउट बिल्स. बिल्स में गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड होता है, यूटिलिटी बिल्स. स्टूडियोज higher than that and only bedrooms cheaper than 120 normally मिल जाता है.
दूसरे एक्सपेंसेस अकोमोडेशन में आपने ईएमआई कर दिए 700 to 800 pounds. 700 actually it's on higher side, but 500 to 700 is something that you can budget. Groceries normally per month 80 to 100 pounds के बीच में होता है, so that brings your overall expenses to 800 pounds a month. फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए है, कहीं पे घूमने चले गए, रेस्टोरेंट्स में चले गए, ऑब्वियसली ये होगा ही. एंड इनिशियल टाइम जब आप पहली बार आते हो तो ये खर्च थोड़े ज्यादा हो जाते हैं. देन यू स्टार्ट टू रियलाइज करे भाई मेरे बहुत सारे खर्च हो रहे हैं, अब मुझे थोड़ा घर पे रह के खाना बनाना पड़ेगा. और ये भी आई थिंक जो miscellaneous expenses you're saying, Abbas, it also depends on person to person and your lifestyle, na, because somebody is like who loves to go out and you know week में एक बार तो जा ही रहे हैं. Then there's somebody who's like नहीं चलो मैं घर में I've taken a you know en suite तो यही बना लो और कर लो. तो वो खर्चे I think up and down हो सकते हैं, but ballpark you're giving which is understandable. Yes. और आप estimate per month आपका खर्चा 800 to 1000 pounds a month होगा. पर आप काफी सारे expenses offset कर सकते हो part time jobs से. So I was coming to this important part because Indian students जब बाहर आते हैं तो ये दिमाग में लेके आते हैं कि यार अभी पार्ट टाइम जॉब कर लें कि थोड़ा थोड़ा खर्चा निकाल लें. तो उसके कितने अच्छे और कितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं? पार्ट टाइम जॉब्स के लिए मैं एक्चुअली 2 पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा था. How are you taking the time, please? A lot of people would want to know that also. Right. I'd get on to that. पर पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में पहले बता देता हूँ. तो पार्ट टाइम जॉब्स आप देख सकते हो जब इंडिया में हो, जब आप आने वाले हो तो उसके 15 days या 20 days पहले यू कैन लुक अप फॉर व्हाट काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स आर अवेलेबल. कहाँ पे देखना होता है? इंडीड पे आप देख सकते हो. मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इंडीड से मिल जाते हैं पार्ट टाइम जॉब्स. पर अगर कोई स्पेसिफिक करियर बेस्ड वाला पार्ट टाइम जॉब से तो इंडीड माइट नॉट बी द गुड ऑप्शन. व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स यू कैन लुक ऑन इंडीड इज अगर आपको रेस्टोरेंट्स में काम करना है, फ्रंट ऑफ द हाउस या बैक ऑफ द हाउस, आपको शेफ का रोल करना है, खाना बनाना है, तो आप इंडीड पे ये मिल जाएगा. सेकंड टाइप ऑफ रोल आप देख सकते हो लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग में. तो वहाँ पे स्टॉकिस्ट का काम होता है जहाँ यू हैव टू मूव थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर स्टैकिंग करनी होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. या फिर कन्वीनियंस स्टोर में आप जा सकते हो, सुपरमार्केट्स में एज अ कैशियर का रोल प्ले कर सकते हो, या फिर कन्वीनियंस कस्टमर एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले कर सकते हो जहाँ पे आपको कस्टमर को साइन पोस्ट कर रहे हो कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको बाय करनी है. तो सुपरमार्केट्स हो गए, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए. एंड पर अगर आपको तो ये मोस्टली आपको इंडीड पे मिल जाएगा. दूसरा एवेन्यू आपके पास है, आप यूनिवर्सिटी के ईमेल्स पे देखो, बिकॉज यूनिवर्सिटी काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स देती है जो रिलेटेड फील्ड्स में हो सकती है आपके, जैसे मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, रिसर्च असिस्टेंट हो गया. तो यूनिवर्सिटी ये आर्ली बेसिस पे पेड रोल्स आपको ऑफर करेगी. तो जस्ट कीप एन आई आउट ऑन यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप्स बिकॉज दे नो कितने सारे स्टूडेंट्स करने वाले हैं. तो ये लोग इंटर्नशिप्स के मेल एवरी 15 days, फोर्टनाइटली या मंथली देते हैं, and then you can apply on those universities. Apart from that, I think अगर आपको कोई आपके करियर बेस चाहिए, जैसे मुझे फाइनेंस बेस्ड रोल चाहिए था, तो for that you'll have to go through the LinkedIn option. LinkedIn पे काफी सारी postings आ गई, then you can approach them. Okay, I'm gonna come over there. अगर कोई prospects opportunities मेरे लिए available हो, तो they can reach out to you. So, but is there a minimum hour thing, you know, that you can only work for these many hours in a week? Yes. So restrictions है cause you're a full-time student. तो जब आप term time में हो तब you can only work 20 hours per week. But between term times you can work as a full-time professional. तो वहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है. बट दिस शुड बी क्लियर विद द यूनिवर्सिटी फर्स्ट कि बिटवीन टर्म टाइम्स कौन से डेट्स पे यू कैन वर्क. कॉज नॉर्मली मैंने वो कंफ्यूजन देखा है कि अगर एग्जामिनेशन का टाइम हो ना तब यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स नहीं होते. सो पीपल स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, पर वो टर्म टाइम के अंदर आता है, तो वो एक रेस्ट्रिक्शन है. तो यू नो आफ्टर योर एग्जामिनेशन जब टर्म टाइम के जो डेट्स यूनिवर्सिटी देती है उसके बीच में आप फुल टाइम काम कर सकते हो. 40 hours recommended है, पर आई वुडंट recommend anyone go above 40 hours cause वो फिर काफी वो एक फोकस्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका. Correct. 20 hours per week in term time, between term times, outside of term times, more than 20 hours you can do. फिर वो आपका खुद का प्रेफरेंस है कि कितना काम करना है. Okay, one more important thing which students generally ask is, of course, UK तो इंडियंस की कमी है नहीं, इंडियन कम्युनिटी भी है, बट अगर मैं एग्जिटर यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकली बात करूं, सो इज देयर एन इंडियन कम्युनिटी, एंड इफ यस, हाउ वेलकमिंग एंड हेल्पफुल?
Yes, there is an Indian community, एशिया की community है, Indian specific societies है यहाँ पे जो Indian festivals को celebrate करती है. Welcoming काफी cause एक belongingness आ जाती है कि अरे यार ये कोई Indian है, चलो इससे बात करके देखते हैं. And वो पूरा group काफी बढ़ गया है Exeter में भी. पहले इतना नहीं था पर recently after UK became more immigrant friendly, Indians काफी आ गए. तो वो यूनिवर्सिटी का Exeter यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी इंडियंस का पूरा रश आ गया है. काफी सारे यूनिवर्सिटीज में वेलकमिंग है. दे हेल्प यू विद चूजिंग विच सोसाइटीज यू कैन जॉइन, व्हाट सोसाइटीज ऑफर व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स. एंड अगर इंडियन सोसाइटीज अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो यू गेट टू नेटवर्क विद पीपल एंड ऑल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, नवरात्रि रिसेंटली जो है. तो they organize some events where you can enjoy your festivals in the UK. Correct. And lastly, I'm going to ask you two questions. The first one is very important. What is the acceptance rate in Exeter? And the other is, what are the job ke liye kitna help karte hain? Right. Acceptance rate, for my program is roughly between 30% to 40%. Okay. But that depends on a lot of things. You may feel like कि 30% के रेशियो में मुझे बहुत डिफिकल्ट है, बट if your application is correct, you stand a higher chance. First come first basis का एक रूल तो है ही कि अगर आपने पहले अप्लाई कर लिया तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है. दूसरी चीज़ है आपके क्वालिफिकेशंस क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है एंड आपके स्किल्स क्या है. तो ये सारी चीज़ स्टैंड आउट करती है. इंडिया में मैंने ज़्यादा देखा है कि द मोर डिग्रीज दैट यू हैव द बेटर इट इज़ फॉर यू टू स्टैंड आउट. पर यूके में इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. वो लोग डिग्रीज कितनी हैं आपके पास वो जनरली नहीं देखते, बट व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू हैव, व्हाट स्किल्स यू ब्रिंग टू द टेबल फॉर द यूनिवर्सिटी, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्सिटी मैटर्स मोर. बिकॉज डिग्रीज तो आपके पास आ जाएगी पर स्किल्स आपका क्या मोटिवेशन है ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने में, वो सारी चीज़ अगर आप देखो तो बेटर है. Second part of the question, which was jobs के लिए क्या prospects है, तो again यहाँ पे recruitment cycle थोड़ा अलग चलता है. Normally India में campus interviews होते हैं, placement drives होते हैं, which is not the case in the UK. तो UK में they help you with developing your applications like CV, references, cover letters and what things to write on your CV, how to construct your CV. UK specific CV कैसे बनाते हैं वो थोड़ा अलग है इंडिया से. तो यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं होता बट जॉब फेयर्स होते हैं कि अगर आपको किसी के टच में आना है, प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉयज़ के टच में आना है या फिर अगर टच में आने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो हाउ यू कैन मेक यूज़ ऑफ सोशल मीडिया पेजेस या फिर एलुमनाई स्ट्रेंथ या फिर the network of your faculty to get in touch with the prospect employers. Correct. I think you would have to do the majority of the hard and heavy lifting, but university is there only to support you. Mostly which is a good thing because आपको handhold करके they're not spoon feeding you but they are mentoring you so that you can make the best decision, which I think is a good thing. चलो जाते all of us learn from our own experiences, but Abbas, sometimes when there is somebody to guide us, like College Dunya is there to guide students into what kind of colleges or universities they can pick. Then we have interviews with students like you who can give us a बिल्कुल hands down information. तो मुझे कुछ do's and don'ts बताओ, कुछ expectation that people should come with और कुछ high hopes लेकर आनी है या नहीं आनी है, ऐसा कुछ जाते some tips. Right. One tip that I'd give you is be shameless in networking, cause that's the way forward. अगर आपको कोई कोई भी अगर आपको मिल रहा है जो आपको help कर सके या ना कर सके तो बाद में evaluate करेंगे, पर अभी जो students है, professors है, so make sure that you get in touch with them, not after you come to the university, but make sure that you approach them before even you are here through LinkedIn or if कोई society join करनी हो तो Instagram के pages पे जाके. So I think building your network is the first thing that I'd recommend all of the students, because you don't know which network helps you win. Second is make the best use of the opportunities that you get during your time at masters. मेरा masters 1 year का था, so I had to do many things during that 1 year. अगर आप अंडरग्रेड के लिए आ रहे हो तो यू हैव 3 years आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा है. तो 1 year के अगर आप प्रोग्राम में आ रहे हो तो मेक श्योर दैट यू गेट इन टच विद पीपल एंड ऑल्सो फोकस ऑन योर स्टडीज एट द सेम टाइम. थोड़ा हेक्टिक हो जाता है बट इफ यू पुट योर माइंड टू इट, अगर एक शेड्यूल है तो आई थिंक यू कैन डू दैट. सो ट्राई टू बी
as open as possible with the students for the opportunities and societies and things that university is giving you. Don'ts, I'd say, well, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं. Make sure that you do your research well, cause and not just be guided by someone who might not have the same interest as yours. Cause अगर कोई चीज़ कोई for example कोई अगर कोई मॉड्यूल ऑप्शनल मॉड्यूल जैसे सिलेक्ट करना होता है, कोई अगर मेरे फ्रेंड्स कोई ऑप्शनल मॉड्यूल सिलेक्ट कर रहे हैं तो मैं भी वही कर लूँ ताकि साथ में पढ़ाई कर लेंगे या फिर एग्जाम में सपोर्ट हो जाएगा. सो मेक श्योर कि अगर आप वो ना करो, आई मीन ऑफ कोर्स अगर आपका उसमें इंटरेस्ट हो तो यू कैन डू दैट, पर अगर आपको लगे कि नहीं दैट मॉड्यूल इज नॉट राइट फॉर मी, सो मेक श्योर दैट यू गेट द राइट एडवाइस फ्रॉम द राइट सोर्स. ये एक चीज़ है. बाकी डोंट्स में तो Baki, everybody learns from their own experience, everybody right? learns from their, that's true, yeah, that is Okay. specific नहीं, because ये बहुत experience based हो जाएगा. Correct. But I think you've given a great many tips. You've been a big help, Abbas, and I think especially Exeter University, जितने लोग aspire कर रहे हैं या already उसकी research कर रहे हैं. So the conversation that I had with Abbas, I'm sure it's going to be really helpful for you. So thank you so much for that, Abbas, and I wish you all the luck for your course and of course your placement and great career ahead. And thank you so much for being with us. Pleasure. So this was my conversation with Abbas Lokhandwala from Exeter University. I hope आपने ये tips सुनी हैं, इसका आप फायदा उठाएंगे. And ऐसे ही useful information, informative videos आपके लिए लाते रहेंगे. If you've not yet subscribed to the channel, do that. Also, if you like this video, like कीजिए. I'm going to see you in another video with another information. So until then, take good care. Bye-bye.